Today's our topic is that using a sampling distribution of sample mean. The second is find the z value of mean when the population of standard deviation is known. The third topic is estimation and confidence interval. The fourth one is point estimate confidence interval. Fifth one is the confidence interval for the population mean with the standard deviation is known. Population, and the next is population standard deviation is unknown. The and other is the confidence interval for the population mean unknown. Confidence interval for the population for a population proportion. Then the topic is proportion, sample proportion, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन. आज हम क्या करेंगे, इनके पहले इनको थोड़ा सा डिस्कस. Finding the z value of mean when the population standard deviation is unknown. That is the formula of z test, or we can say that's the z distribution we already discussed in our last class. Example. So let's solve the example. The quality assurance department for Cola and Corporation maintain the record regarding the amount of cola in the jumbo bottles. The actual amount of cola in each bottle it's critical but varies a small amount from one bottle to the next. Cola and Corporation does not wish to unrefill that the bottle because it will have a problem with the truth in labeling. On the other hand, it cannot overfill the bottle because it will reduce the profit records. Maintains quality assurance department indicate that the amount of cola follows that the normal distribution of the mean amount per bottle is 31.2 ounces and the population standard deviation is 0.4 ounces. 8 a.m. Today, the quality assurance technician randomly selected if the bottle from the filling line, the main amount of cola contained in the bottle is 31.38 ounces. Is this unlikely result? Is it likely that the process is putting too much soda in the bottles? Put in other way, in the sampling error of 0.18 ounces usually. Let's solve. The data is our mean is 31.38, our population is 31.20, our standard deviation is 0.4, our sample size is 16. So now put the data in formula. Let's see. Formula is x minus x bar divided by standard deviation / under root n. So our x bar is 31.38 minus to mean x 31.20 divided by standard. What is our standard deviation? It's 0.4 / under root n. What is our n? N is 16. So let's calculate. When we minus 31.20 to 31.38, our answer is 0.18. Then we solve the other part of the formula, 0.4 / under root 16. When we solve this, our answer is 0.1. So our total answer is 1.8. Now we compute the likelihood of a z value greater than 1.8 in the appendix B3. Located the probability corresponding to a z value 1.80. It is the 0.4641, but if z value is the greater than 1.8 is 0.0359 found by that. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो z वैल्यू आई है, ठीक है, उसको हम वो कह रहा है इफ़ अवर z वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1.8 इज़ 0.0359.
फाउंडेड बाय, तो वो हमने कैलकुलेट कैसे की। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको पता है कि हमारा जो अंडर एरिया कर्व होता है ये पूरा क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या किया, इसके आधे में से, ठीक है, आधा नेगेटिव होता है आधा पॉजिटिव होता है, टोटल को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने क्या किया, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, 0.5 में से हमने माइनस कर दी वो वैल्यू जो हमने जी टेबल से फाइंड की थी। वो क्या थी हमारी, 0.4641 जो ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो उससे माइनस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0359, ठीक है। अब हम नीचे देखें, आपको ये शो हो रहा होगा जो मैंने बेल शेप कर बनाया हुआ है। इसमें मैंने ड्रॉ किया है कि अगर हमारा मीन ज़ीरो जो हमारे मिड पॉइंट है, सेंटर बिल्कुल, हम उसे क्या कर 0 से उस पर 0 शो करेंगे। उसके बाद मैंने जी वैल्यू नीचे पुट की हुई है 1.80 की, ठीक है। अब उसके ऊपर ही मैंने क्या किया है, मीन वैल्यू भी दी गई है जो 31.20 से लेकर 31.38 तक मैंने ऊपर मेंशन की हुई है। अब जो बीच में मैंने वैल्यू लिखी हुई है 0.4641, ये हमने क्या किए, जेड टेबल से लिए। अब यही वैल्यू हम 0.5 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा वो आएगा 0.0359। वो क्या होगी, हमारी वो वैल्यू होगी। अगर सपोज कर रहा है कि अगर हमारी जेड टेबल 1.80 से ग्रेटर है तो हमारा ये अमाउंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नीचे इसका कंक्लूजन देखें कि लेस देन 4% chances we can conclude the process is putting too much cola in the bottle. The quality technician should see the production supervisor about the reducing the amount of soda in each bottle. ये क्या है, इसका conclusion निकला हमारा। So now our next topic is estimation and confidence interval. So first of all, what is point estimation? The statistic compute a sample information for that estimate population's parameter. That is a definition of point estimation. So मैं आपको क्या करूँगी, इसका एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगी ताकि आपको ये point estimation क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेट एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट ऑफ कॉलेज की जो एज आ रही है वो आ रही है 32। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। ये जो 23 आएगा, ये हमारे पास आंसर आया जो एवरेज आया, हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारी पॉइंट एस्टिमेट है। अब आ जाते हैं हम what is interval estimate. Suppose the range of value which estimate to population parameter. For example, अगर हम कहें if the age of a student is rely between 21.5 to 24.5, इन दोनों के बीच में अगर आप हमारी जो रेंज ऑफ स्टूडेंट है वो रिलाई कर रही है, इट इज़ अवर इंटरवल एस्टिमेट। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल एस्टिमेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस 23 को, अब हमारे पास ये आंसर, ये रेंज हमारे पास आ गई 21.5 टू 24.5, तो ये हमारे पास रेंज आ गई। अब अगर हम 24.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21.5 आ जाएगा, और अगर इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो 24.5 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ये जो हमारी बीच वाली सेंटर वाली वैल्यू है जिसको हम माइनस और प्लस कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अवर मार्जिन एरर। मार्जिन एरर कैलकुलेट बेस्ड इसको हम क्या कहेंगे, मार्जिन एरर कहेंगे। मार्जिन एरर इज कैलकुलेट बेस्ड कॉन्फिडेंस लेवल. So the confidence level is percentage of a confidence interval that we accept to contain the population parameter. Confidence level is 90%, 95%, 99%, but the most common use 95%. ये जो मोस्टली हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो ज़्यादातर जो है हम लोग 95% ही कैलकुलेट करते हैं. अब 90%, 95% ये एक्चुअली कैसे हम इन वैल्यूज़ को नोट करते हैं, किस तरीके से ये वैल्यूज़ आती हैं, अभी आगे चल के मैं आपको ये भी समझाऊंगी. The result central element theorem allow us to make following general
कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेटमेंट यूजिंग द जेड टेस्ट, ठीक है। द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सैम्पल इक्वल टू 1.96 एंड 95 जो है वो डिनोट होती है 1.65 से, हाँ 1.65 से होती है, सॉरी 64 से ये पहचानी जाती हैं। सो the confidence interval statement provide the level of confidence. How can we the value is 1.96 and 1.65. इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। जैसे फर्स्ट स्टेप इसका होता है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिवाइड द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन द हाफ ऑफ ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो 95% है उसको इस तरीके से 0.9500 को डिवाइड कर देंगे 2 से, इक्वल तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 0.4750। अब सेकेंड स्टेप इसका क्या है, फाइंड द वैल्यू जो अभी हमें मिली है 0.4750 इन द जी टेबल। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू हमने जी टेबल में फाइंड आउट करनी है। क्लियर? इन जी टेबल लोकेटेड द कोरिस्पॉन्डिंग रो वैल्यू इन द लेफ्ट मार्जिन विच इज 1.9 एंड द कॉलम is value in the top of the margin which is 0.06 added value of row and the column is 1.96। ठीक है। जब हमने ये वैल्यू ढूंढी जी टेबल में, तो ये हमें कहाँ मिली, जो रो थी इसकी पहले उस लेफ्ट मार्जिन जो लेफ्ट साइड पे हमारी रो है उसमें हमने देखा तो 1.9 में हमें ये वैल्यू मिली रो में, और कहाँ पर उसका कॉलम कौन सा था 0.06। इस बिहाफ पे इस पे ये हमें हमारा जो है टोटल, अगर हमने इन दोनों वैल्यूज़ को रखा साथ में तो हमारी वैल्यू बन गई, फाइनल वैल्यू क्या हुई 1.96। इसी तरीके से हमारी क्या हुई, ये हमने 95% कॉन्फिडेंस लेवल की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर दी। सो सेकंड हमारा स्टेप पे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना। उसमें भी पहला स्टेप सेम ही रहेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90% को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, 0.90 को फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। फर्स्ट स्टेप हमारा दोनों वैल्यूज़ में सेम रहेगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.4503, उसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से जेड टेबल में ढूंढेंगे। सेकंड, तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है, इट्स नॉट द रिवाइवल दैट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ बिटवीन 2 वैल्यूज़ 0.4495 एंड 0.4505। अब हमने क्या हुआ, जब हमने जेड टेबल में देखा तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, लेकिन हमें ये दोनों वैल्यूज़ मिली, जो क्या थी, वो जो 0.44595 एंड 0.4505। ठीक है। तो थर्ड हमारा स्टेप इसमें क्या हो गया, तो 1 पॉइंट ये जो हमें मिली वो कहाँ मिली, इस रेंज में हमें मिली 1। ठीक है। तो हमने क्या किया, द 1.64 एंड द एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस 90.1%। सो द कंजर्वेटिव वी विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट वैल्यू विच इज़ 0.4505। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू आई, हमने इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू थी इन दोनों में से वो हमने सेलेक्ट कर दी। जो हमारा एग्जैक्ट 90% कॉन्फिडेंस तो नहीं हुआ, लेकिन 90.1% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ना हमारा फाइंड आउट हो गया।